मिलकर ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, बल्कि कानून इसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे डिमांड्स ये भी है कि मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं इंटर्न से डॉक्टर से उनको सेफ्टी दी जाए, और यहाँ के वुमेन्स जो रातों में भी नाइट ड्यूटी करते हैं उनको भी सेफ्टी दी जाए, और हॉस्पिटल जो एनवायरनमेंट है उसको भी ना गुंडागर्दी करे, उसमें एक एनवायरनमेंट एक अच्छे एनवायरनमेंट में ले जाए। इसको एक भारत जो है इसे एक नया कानून लाए जिससे हमको महसूस हो कि हम दूसरों की जान बचाते हैं, वो लोग दूसरों की जान जो हम बचाते हैं उनकी भी जान बचाने का हम लोगों को काम करने का मौका मिले, और हमारी ज़िंदगी भी सेफ्टी है। हम लोग दिन भर 24/7 नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है और इसके लिए कोई सज़ा नहीं मिल जा रही है, और जो रेपिस्ट है वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम सरकार से ये विनती करते हैं कि सख्त खड़ा दी जाए और उस मासूम बेगुनाह औरत डॉक्टर के लिए इंसाफ मिले। ये हमारा आज मोटिव लेकर आकर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट के आकर हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। कॉलेज एंड पैरामेडिकल कॉलेज एंड सिक्याब नर्सिंग कॉलेज की तरफ से आज यहाँ पर डीसी सर को हम मेमोरेंडम देने आए हैं, जो कलकत्ता में एक पीजी स्टूडेंट के साथ जो दर्दनाक हालत के साथ उनकी जो हालत की गई है उसके बारे में हर माँ बाप हर बच्ची डर चुके हैं, क्योंकि हमारा आज़ाद हिंदुस्तान है। आज़ाद हिंदुस्तान होने के बावजूद भी औरतों के साथ ये हालात ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि अब लड़कियों को माँ बाप बाहर छोड़ना मुश्किल हो गया है। तो हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी सज़ा सुनाए कि कोई आदमी कोई वहशी एक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि हमें ये चीज़ करना है या नहीं करना है। तो वी वांट जस्टिस फ्रॉम गवर्नमेंट। We are here today for representation regarding the protest against the Kolkata rape and murder case of a doctor. Representing the faculty, staff, students of SICAB associations, Lukman Unani Medical College, Hospital and Research Center, and SICAB Institute of Paramedical Sciences and SICAB College of Nursing. We are here to express our profound shock and outrage over the recent rape and murder of a doctor in Kolkata. This brutal crime has deeply affected our entire medical fraternity, instilling fear and insecurity among those who have been dedicated their lives to service the humanity. This crime has not only shocked the entire nation, but has also shaken the faith of the people in the safety and security of professionals who dedicate their lives to serving others. The incident is a stark reminder of a growing dangers faced by the women in our society, irrespective of their profession or social standing. As a responsible citizen, we cannot remain silent in this kind of balance. It is very important that we must stand together to demand justice for the victim and ensure that such heinous crimes are not repeated again. In light of this, we have organized a peaceful protest to voice our collective demand for justice and to urge the authorities to take immediate and strict against these criminals. We seek your cooperation and support in the following areas, sir. Number one, the expeditious coordinate with the relevant authorities to expedite the investigation and judicial proceedings in this case. The community expects swift and severe punishment for those responsible for this heinous crime. They should not be imprisoned. Instead, they should be hanged till death as soon as possible, sir. Second, the awareness camps. We request your assistance in initiating the public awareness campaigns that will highlight the importance of women's safety, sir, the legal measures available to protect them, and the need for the social change to prevent such incidents. Lastly, violation of the trust and safety. Doctors are entrusted with the responsibility of caring for others, and they are often vulnerable in vulnerable situations. Molestations of doctors is a severe breach of this trust and undermines the safety of medical profession. The community stands united in our demand for justice, and to resolve this ensure that no other individual has to endure such brutality. We hope that your office will take our concerns
Sir, you say some few words. मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक कोलीग डॉक्टर जो कि 31 इयर्स ओल्ड एक पीजी रेसिडेंट डॉक्टर का गैंग रेप एंड मर्डर हो गया है। ये हमारा आज़ाद हिंदुस्तान है, तो किस लिए आज़ाद हिंदुस्तान है जब कोई एक फीमेल, ना ही कोई यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, आजकल तो है बहुत सारे फीमेल्स का रेप मर्डर किया जा रहे हैं। हम आज़ाद हिंदुस्तान है तो किस लिए आज़ाद हिंदुस्तान है जब कोई यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन ही नहीं है, तो फिर किस फ़ायदे का हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है? किस लिए हम आज़ादी मनाए जाते हैं, हर साल मनाते हैं 15 अगस्त को, किस लिए जब कोई भी फीमेल यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है? हर साल पता नहीं बहुत सारे रेप्स होते हैं, वहीं पर मर्डर किए जाते हैं। अभी ये तो एक डॉक्टर है जो कि हर एक इंसान की जो है लाइफ सेविंग करते हैं। अभी इन लोगों को ही जब प्रोटेक्शन नहीं है तो पता नहीं कौन से कितने कितने कॉमन लोगों का क्या क्या हुआ है। तो वी रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, और ये क्या है इमीडिएटली होना चाहिए ताकि क्या है पूरी आम जनता, आम पब्लिक के सामने हो ये पनिशमेंट, और आम जनता, आम पब्लिक सब क्या है इसे डरे कि ये हमारे को नहीं करना है। ये आम पब्लिक में जब तक डर नहीं आएगा तब तक कोई भी इसको क्या है यहाँ पे सीरियसली नहीं लेगा। सब लोग क्या है एज ए कॉमन, चलो एक हो गया दूसरा कर लेंगे तीसरा कर लेंगे, ये क्या है एज ए लाइटली ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे कि क्या है अपना कुछ गुटखा खाना या फिर सिगरेट पीना। जब तक इसको हम स्ट्रिक्टली एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेती तब तक क्या है इसका कुछ भी हल नहीं निकलने वाला। तो हम सब लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। दूसरे कंट्रीज में लिया जाता है विद इन 4 डेज, विद इन 7 डेज, यहाँ पे सालों से हर एक केस डेट टू डेट चला जा रहा है। कभी निर्भया, अभी मौमिता, पता नहीं और कितने हैं हमारे को नहीं मालूम है, बट गवर्नमेंट शुड टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। आई रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स एंड मेडिकल फ्रैटर्निटी फ्रॉम अदर कॉलेजेस आल्सो कि गवर्नमेंट इसका स्ट्रिक्ट एक्शन ले। थैंक यू। मैं लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज बीजापुर का स्टूडेंट हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। जैसा कि अभी आप सब जान रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज बंगाल में एक 31 इयर्स की डॉक्टर मौमिता जो कि पीजी एंट्रेंस थी, 36 घंटे की नाइट डे की शिफ्ट मिला के 36 घंटे की उन्होंने ड्यूटी की, और उसके बाद उनके साथ सिला क्या मिलता है, मौत विथ रेप ऐसा जो जिस जानने वाले शैतान तक की रूह कांप जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेप करके मारे हों, ऐसा रेप किए हैं आँखों से खून, वजाइना से खून, माउथ से खून, पेल्विक बोन फ्रैक्चर, लेफ्ट लेग फ्रैक्चर, नेक फ्रैक्चर ऐसे किए हैं। और ये कोई एक आदमी नहीं किया है, इसके पीछे जितने हैं, मैं दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी से एंड होम मिनिस्टर अमित शाह से और महिला आयोग मंत्री जितने भी हैं, सांसद हैं हमारे पार्लियामेंट में, और उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं ये अपने पूरे मेडिकल स्टाफ, स्टूडेंट और स्टाफ के तरफ से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और इससे सबसे अहम बात कि बंगाल गवर्नमेंट खामोश थी, जबकि वहाँ की सीएम खुद एक लेडीज़ हैं और औरत के साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है, औरत का रेप हो रहा, और फिर भी वो खामोश हैं। इस पर उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए उन रेपिस्टों को, और इस पर उनको निगरानी करनी चाहिए। जितने भी इसके पीछे रेपिस्ट हैं, जितने लोग भी हैं, तकरीबन 10-11 हैं, ऐसा न्यूज़ में भी आया है, क्योंकि 150 ग्राम सीमेन मिला है फिर उन डॉक्टर मौमिता के वजाइना से। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जय हिंद। मोहम्मद जुबैर खान।